کچھ کہانیاں صرف لفظوں سے نہیں لکھی جاتی، کچھ رازوں سے لکھی جاتی ہے۔ الینا ہمیشہ سے مختلف تھی۔ شہر کی تیز روشنیوں، ہنستے کھیلتے بچوں اور زندگی کی بھاگ دوڑ سے الگ وہ ایک خاموش گلی کے آخری کونے میں موجود خستہ حال لائبریری میں رہتی تھی۔ وہاں کا ماحول جیسے وقت کی گرفت سے آزاد تھا۔ پرانی لکڑی کی الماریاں، بوسیدہ کتابیں، کھڑکیوں پر جمع گرد اور دیواروں پر آویزاں مدھم تصویریں، ہر چیز میں ایک پراسرار خاموشی بولتی تھی جو صرف وہی سن سکتا تھا جو خود بھی اندر سے خاموش ہو چکا ہو۔ الینا بھی انہی میں سے تھی۔ ہر صبح وہ خاموشی سے اپنی چادر اوڑھ کر لائبریری آتی، دروازہ کھولتی، روشنی کو اندر آنے دیتی اور کتابوں سے اپنے دن کا آغاز کرتی۔ کوئی اسے سلام نہ کرتا اور نہ ہی وہ کسی کی راہ دیکھتی تھی۔ اس کے لیے یہ کتابیں ہی سب کچھ تھیں، ساتھی، رازدار اور شاید رہنما۔ لوگوں کے لیے وہ ایک عجیب تنہا لڑکی تھی جو ہمیشہ کتابوں میں چھپی رہتی، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ انہی کتابوں میں اپنے ماضی کے بکھرے ہوئے صفحے تلاش کر رہی تھی۔ الینا کے ماں باپ اس وقت غائب ہو گئے تھے جب وہ صرف 7 سال کی تھی۔ بس ایک رات اچانک سب بدل گیا۔ وہ معمول کی ایک رات تھی۔ اس کی ماں اسے کہانی سنا رہی تھی، ایک شہزادی کی جو چمکتے ستاروں کی دنیا میں اپنے خاندان کو ڈھونڈنے نکلی تھی۔ اس کے باپ نے اسے ماتھے پر بوسہ دیا تھا اور کہا تھا، تم ہماری چھوٹی سی روشنی ہو الینا، کبھی اندھیرے سے نہ ڈرنا۔ اور پھر صبح ہوئی اور وہ دونوں غائب تھے۔ نہ کوئی چیخ، نہ کوئی نشان، نہ کوئی وضاحت۔ پولیس، رشتہ دار، ہمسائے، سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ایک رپورٹ درج ہوئی، کچھ دن شور رہا، پھر سب خاموش ہو گئے۔ مگر الینا کی دنیا تب سے راگ گئی۔ اس دن کے بعد وہ ہنسی نہ صرف خاموشی سے جینا سیکھ گئی۔ اسے اکثر ان کی آوازیں سنائی دیتی، خوابوں میں، نیند کے کنارے، کسی خاموش لمحے میں۔ اس کی ماں کی نرم گنگناتی آواز اور اس کے باپ کی گہری تسلی بخش باتیں۔ لیکن صبح ہوتے ہی سب دھند میں چھپ جاتا۔ لائبریری ہی اس کی پناہ گاہ بن گئی۔ یہ لائبریری اس کے والد کی پسندیدہ جگہوں میں سے ایک تھی۔ بچپن میں وہ اکثر اسے یہاں لایا کرتے تھے۔ وہ بڑی کتابوں کے درمیان بیٹھ کر کہانیاں سنتی اور اس کے والد کہتے، ایک دن ان میں سے ایک کتاب تمہیں تمہارا سچ دکھائے گی۔ وہ جملہ اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے سب ہو گیا تھا۔ اسی امید پر وہ برسوں سے اس لائبریری میں کام کر رہی تھی، ہر کتاب کو چھو کر پڑھ کر جیسے کسی راز کو ڈھونڈ رہی ہو۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں ڈھل گئے، مگر وہ لمحہ نہ آیا جب تک کہ وہ شام نہ آئی۔ وہ شام جب چاندنی ٹوٹے ہوئے آئینے کی طرح آسمان پر بکھری ہوئی تھی۔ لائبریری کے تمام کمرے بند ہو چکے تھے سوائے ایک کے، وہ حصہ جہاں برسوں سے کوئی نہیں گیا تھا۔ وہاں جانے کی اجازت کسی کو نہ تھی، حتیٰ کہ الینا کو بھی نہیں۔ کہا جاتا تھا کہ وہ حصہ خستہ حال، خطرناک اور بوسیدہ ہو چکا ہے۔ لیکن اس روز کچھ مختلف تھا، جیسے کوئی اسے بالا رہا ہو۔ ہوا میں نمی سی تھی، دیواروں پر سائے رقص کر رہے تھے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے زنگ آلود تالو کھولا اور دروازہ چرچراتی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اندھیرے میں لپٹے اس کمرے کا ماحول کچھ عجیب سا تھا، جیسے صدیوں سے کسی نے وہاں قدم نہ رکھا ہو، اور پھر بھی ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی۔ ایک کونے میں ایک پرانی الماری کھڑی تھی، جس کے نیچے مٹی کی ایک موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس نے ہولے سے دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ الماری کی طرف بڑھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ الماری کے درمیان ایک خالی جگہ میں ایک کتاب رکھی ہوئی تھی، چمڑے کا پرانا جھلسا ہوا سا سرورق، نہ کوئی عنوان، نہ کوئی مصنف کا نام۔ وہ کتاب جیسے خود ایک سوال تھی۔ جیسے ہی الینا نے اسے چھوا، ایک زوردار جھمکا ہوا، روشنی جھپکنے لگی، ہوا میں لرزش آ گئی۔ الماری کے شیشے ٹھنڈی سانس کی طرح دھند سے بھرنے لگے۔ اس کے گرد فضا جیسے گہری ہوتی گئی، اور پھر ایک آواز ابھری، وقت آ گیا ہے الینا۔ وہ گھبرا کر پیچھے مڑی تو سامنے ایک عجیب و غریب شخص کھڑا تھا۔ نیلا چہرہ، سنہری آنکھیں اور دونوں کندھوں پر سانپ لپٹے ہوئے۔ اس کی آواز میں نہ زور تھا نہ نرمی، بس ایک ایسا سکوت تھا جو دل کو چیر کر گزر جائے۔ میں قائل ہوں، اس نے کہا، تمہارے ماں باپ کا پرانا دوست اور دشمن۔ حصہ سوم، قربانی کا لمحہ۔ ماں، بابا،
अलीना की आवाज कांप रही थी और दिल धड़कने से जैसे इनकार कर रहा था। शीशे जैसे कैद खाने में वो दो चेहरे थे, वक्त से बालातर, मगर आंखों में वैसी ही शफकत जैसे बरसों पहले अलीना ने आखिरी बार देखी थी। इसकी माँ का चेहरा थका हुआ मगर रोशन था। इसके वालिद की आंखें नमी से लबरेज, मगर मुस्कुराहट में वही सुकून था जिसके लिए अलीना ने जिंदगी भर तड़प महसूस की थी। बेटी, इसकी माँ ने सरगोशी की, तुम आ गई। अलीना आगे बढ़ी, हाथ इस कैद खाने की दीवार से लगा दिए हैं। मैंने आपको ख्वाबों में देखा था, लेकिन यकीन कभी नहीं आया कि हमने तुम्हें नहीं छोड़ा था। अलीना, इसके वालिद की आवाज में पशेमानी थी। हम मजबूर थे, तुमने हमें आजाद करने का रास्ता ढूंढ लिया बेटी, मगर याद रखो हर नजात की एक कीमत होती है। इस लम्हे काइल और मेरा भी इस दुनिया में नमूदार हो गए। पोर्टल सिर्फ एक बार खिलेगा, ये मेरा ने संजीदगी से कहा, और अगर तुमने अपने वालिदैन को बचाया तो किताब खुद को खत्म कर देगी। वो इल्म, वो ताकत हमेशा के लिए मिट जाएगी। काइल आहिस्ता से बोला, लेकिन अगर तुम किताब को बचाती हो तो शायद हम और बहुत से लोगों की जिंदगियां बचा सकते हैं। ये इल्म नस्लों को फायदा दे सकता है, अंधेरे में रोशनी बन सकता है। अलीना एक लम्हे के लिए साकित हो गई। सामने इसके माँ बाप थे, वो ख्वाब, वो यादें, वो मोहब्बत जो बचपन से इसकी जिंदगी का मरकज रही थी, और उसके पीछे वो किताब थी, वो ताकत जो न सिर्फ इसकी जिंदगी बल्कि बहुत सी जिंदगियों को बदल सकती थी। इसके दिल में एक जंग छिड़ गई। एक तरफ जाती खुशी थी, दूसरी तरफ फर्ज। माँ बाप की नजरें इस पर जिमी थी। हम तुम्हें आजाद देखना चाहते हैं बेटी, न कि कैद, एक ऐसी ताकत में जो तुम्हारी रूह को चीर डालेगी। ओ माँ की आवाज एक इल्तिजा थी। हमने इल्म को बचाया, अब तुम दिल को बचाओ। ओ बाप की आवाज में सुकून था। अलीना की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने आहिस्ता से किताब को जमीन पर रखा। मैंने सारी जिंदगी आपको ढूंढा। मैंने हर दुआ, हर ख्वाब, हर उम्मीद में बस आपका चेहरा मांगा, और आज जब अब सामने है, मैं आपको खोना नहीं चाहती। कुछ लम्हों की खामोशी छा गई। फिर इसने दोनों हाथ अलिफाटेई और आसमान की तरफ देखा। मगर अगर इल्म मेरी मोहब्बत से ज्यादा ताकतवर है तो वो मोहब्बत कहाँ है जो लोगों को बचा सकती है? इसने हाथ जमीन पर रखी किताब की तरफ बढ़ाए, इसे आहिस्ता से चावामा और फिर पीछे हिट गई। माँ, बाबा, मैं आपको चुनती हूं। एक जोरदार रोशनी का तूफान उठा। पोर्टल खुला, सुनहरी रोशनी हर तरफ फैल गई और उसके माँ बाप कैद खाने से निकलकर अलीना से लिपट गए। बरसों का फासिला, दर्द और तड़प उन चंद लम्हों में तहलील हो गई। काइल पीछे खड़ा खामोशी से देख रहा था। इसकी आंखों में अफसोस, फख्र और हसरत की परछाइयां थीं। मेरा आहिस्तगी से बोली, इसने सही फैसला किया। और इसी लम्हे किताब ने खुद को जलाना शुरू कर दिया। इसके अल्फाज जो सदियों का इल्म लिए हुए थे, धुआं बनकर फिजा में तहलील होने लगे। अलीना के हाथों से रोशनी निकलने लगी, जैसे इसने कुछ खोकर सब कुछ पा लिया हो। जब रोशनी मांद पड़ी, वो दोबारा लाइब्रेरी के उसी खस्ता हाल कोने में खड़ी थी जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। इसके सामने वही पुरानी अलमारी, वही खामोशी, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। माँ उसके पहलू में खड़ी थी, हाथ थामे। बाप उसके कंधे पर हाथ रखे मुस्करा रहा था। हिस्सा दुवम, सच का साया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। अलीना की आंखें काइल पर जिमी हुई थीं और दिल में खौफ, तजस्सुस और एक अनजानी सी उम्मीद का तूफान बरपा था। तुम कौन हो? इसकी आवाज कपकपा रही थी। काइल के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी जो बैक वक्त पर असरार और अफसोसनाक थी। मैं इस कबीले का आखिरी नुमाइंदा हूं जिसका इल्म वक्त से पुराना है। तुम्हारे माँ बाप इसी कबीले के मुहाफिज थे। अलीना की सांसें रुकने लगी। मेरे माँ बाप? काइल ने इस बात में सर हिलाया, फिर आहिस्तगी से अलमारी के पास आया और उस किताब को अलिफाटे लिया जो अभी चंद लम्हे पहले रोशनी से चमक उठी थी। ये सेहरनामा है अलीना, आम किताब नहीं। इसे वही खोल सकता है जिसके खून में इस इल्म की लहरें दौड़ती हों, जो अब तकरीबन खत्म हो चुका है। तुम्हारे माँ बाप ने इस इल्म को अपनी जान से संभाला था, लेकिन वो कहाँ गए? अलीना की आवाज में इल्तिजा थी।
काइल ने गहरी सांस ली। वो आज भी जिंदा है मगर इस दुनिया में नहीं। उन्होंने अपनी कुव्वत से इस किताब को बचाने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन ज्यादा ताकतवर था। इसने उन्हें कैद कर दिया, एक ऐसी दुनिया में जहां वक्त साकित है। कौन दुश्मन? अलीना ने पूछा, आंखों में आंसू तैरने लगे। वक्त खुद, काइल ने कहा, और कुछ वो जो उसके मुहाफिज बन बैठे। फिर इसने किताब अलीना के हाथों में दी। ये किताब तुम्हारे लिए खिलेगी और हर सफ़ा तुम्हें वो यादें दिखाएगा जो तुम्हारे वजूद में छपी हैं, सच्चाइयां, पैगामात, राज। अलीना के हाथ कांपने लगे, लेकिन इसके अंदर एक अनजानी सी ताकत जाग उठी थी। इसने आहिस्ता से किताब का पहला सफ़ा खोला। एक रोशनी सी निकली और उसके सामने एक मंजर उभरा। वो खुद अपने वालिद की गोद में थी, अपने कमरे में हंसती हुई। इसकी माँ दरवाजे पर खड़ी नरमी से मुस्कुराती हुई। फिर मंजर बदला। एक नीम अंधेरी रात, इसके वालिद किसी किताब में कुछ पढ़ रहे थे और उसकी माँ उसके कंधे पर हाथ रखे किसी फैसले पर राजी करने की कोशिश कर रही थी। दोनों के चेहरों पर तशवीश थी। अगर वो हमारे पीछे आ गए तो? हमें इल्म बचाना है, चाहे कुछ भी हो। अलीना हमारी रोशनी है, इसे छुपाना होगा। फिर मंजर खत्म हुआ और सफ़ा पलट गया। हर सफ़ा एक नया जख्म था, एक नया राज। और फिर एक सफ़ा आया जिस पर सिर्फ एक नक्श था, एक लाल निशान जैसे खून से बनाया गया हो। इसके छूते ही एक तेज चीख सुनाई दी और अलीना पीछे हट गई। क्या था ये? वो कांपती आवाज में बोली। काइल ने आहिस्तगी से कहा, वो सिग्नल है जो उनके कैद खाने तक जाता है। तुम्हारी मौजूदगी ने उनकी उम्मीद जगा दी है। इसी लम्हे कमरे का दरवाजा दोबारा खुला। एक औरत अंदर आई। इसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और चेहरे पर थकन, सदमे और बरसों के दर्द की झलक थी। इसने अलीना को देखा और फौरन बोली, इस पर एतबार मत करो अलीना। काइल ने फौरन तलवार निकाली जो जाने कहां से इसके हाथ में आ गई थी। मेरा, इसकी आवाज में नफरत थी। मेरा ने अलीना के सामने आकर इसे अपने पीछे कर लिया। तुम्हें मालूम नहीं लीना कि ये कौन है? ये वही है जिसने तुम्हारे माँ बाप से ये किताब छीनी और इस ताकत को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने की कोशिश की। झूठ। काइल की आंखें शोला बन गईं। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन हम सबसे ताकतवर था। मेरा जानती है कि हमने मिलकर लड़ाई लड़ी, मगर इस वक्त इसने पीठ दिखाई। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। हम तुम्हारे साथ हैं हमेशा। चंद दिन बाद लाइब्रेरी में अब एक नया गोशा बनाया गया था। एक छोटा सा कमरा जिसे अलीना ने ओ आदगान इल्म का नाम दिया था। वहां न किताबें थीं, न जादू, बस एक खाली जगह जहां खामोशी से कोई आकर बैठता और खुद से मिलता। अलीना ने फैसला किया था कि वो अब सिर्फ माजी की नहीं, मुस्तकबिल की मुहाफिज होगी। इसने अपनी माँ के साथ मिलकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और बाप के साथ वो कहानियां लिखनी शुरू की जो सिर्फ लफ्जों से नहीं, जज्बों से लिखी जाती थी। और कभी कभार जब रात को आसमान पर सुनहरी चमक होती तो अलीना खिड़की से बाहर देखकर मुस्कुरा देती, क्योंकि कुछ राज, कुछ मोहब्बतें और कुछ कुर्बानियां कभी मरती नहीं।